Hare Krishna. So we are discussing from the 30th and 31st verse of the 4th chapter of Gita entitled Transcendental Knowledge. We have been seeing how till now Lord Krishna has been focusing on various aspects of yajna, various ways in which various people are attracted to the various facets of sacrifice. द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, दान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ. Yes, we have brahmacharis yajna, grihasthas yajna. We have people who are attracted to the impersonalistic conception of Brahman. So in various ways one tries to come to the Supreme. And Krishna gives us a very important lesson in today's shlokas. We are discussing two shlokas today. The 30th and 31st verse of the 4th chapter, Krishna says, Sarvepyete yajna vido yajna kshapita kalmashaha yajna shishtamrita bhujo yanti brahma sanatanam nayam lokosta ayajnasya kutonyah kuru sattama. He says, all these performers who know the meaning of the sacrifice become cleansed of sinful reactions, and having tasted nectar of the results of their sacrifices, they advance towards the supreme eternal atmosphere. O best of the Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily on this planet or in this life, what to speak of next. So we see the concept of yajna is basically centered around coming out of the very strong attachment to aham and mama. जब तक एक जीव अहम और मम के इस जंजाल से बाहर नहीं निकलता, तब तक वो पूरी तरह से भगवान पर अपने आसक्ति को बढ़ा नहीं सकता. इसीलिए ये अहम और मम की जो श्रृंखला है, the root cause that binds us in this material world is the concept of ego, and to come out of that ego is the biggest sacrifice. सबसे बड़ी तपस्या क्या है? अहंकार का त्याग करना. हम बाकी सारी चीज़ें त्याग कर सकते हैं, हम भोग की वस्तुएं त्याग कर सकते हैं, हम अपनी खुशियाँ त्याग कर सकते हैं, कई बार हम व्यक्तियों को त्याग कर सकते हैं, परिस्थितियों को त्याग कर सकते हैं, लेकिन अहंकार का त्याग ये अत्यंत कठिन है. और ये अहंकार ही है जो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अधिआत्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक क्लेश, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम के इस कालचक्र से बढ़ा रहा है. इट इज एग्जैक्टली दिस फॉल्स ईगो. And when false ego is there, then the three modes of material nature, सत्व, रज और तम, ये एक जीव को चेतना में बांध करके, भौतिक चेतना में बांध करके अच्छी योनियों में और निम्न योनियों में घुमाते रहते हैं. So entire concept of sacrifice is to at least come to the level of सत्व. सत्व गुण में क्या है? सत्व गुण में सबसे पहले समाधान है. समाधान माने सैटिस्फाइड. हम देखते हैं there is a river that separates the material world and spiritual world. What is that river? That river is called Viraja. So Viraja, रज और तमो गुण से व्याप्त इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत को जो अलग करती है वो विरज. तो जैसे ही रज और तमो गुण का प्रभाव चेतना पर पड़ता है, वैसे ही जीव क्लेशों से, दुखों से आच्छादित हो जाता है. सो समवेयर वेयर देयर इज नो रजस एंड तमस, दैट प्लेस इज डिवॉइड ऑफ मिजरी. इसीलिए हम देखते हैं आध्यात्मिक जगत को वैकुंठ कहा जाता है. कुंठ यानी दुख, क्लेश, मिजरी. सो ये जगत जो है वो रज और तमोगुण के प्रभाव से कुंठित जगत है, और जहां शुद्ध सत्व है वहां पर वैकुंठ है.
So at least one needs to do tapasya of coming out of the base qualities of rajas and tamas. इसीलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इतना सुंदर वैष्णव पद्धति में 4 नियमों का पालन, 16 माला जप, तो 4 नियमों का पालन क्या कराता है? हमें रजस और तमस के इस प्रमुख आकर्षणों से ऊपर चढ़ाता है. So coming to sattva is like the runway through which the plane of our devotional service can take off towards eternity. If the plane does not get a runway, the plane might be best suited for flying, but it needs to take up the basic speed of 350 to 400 kilometers per hour ताकि वो आकाश में उड़ सके. उसी प्रकार से एक हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो प्लेन है 350 किलोमीटर्स पर आवर यानी सत्वगुण, लेकिन अल्टीमेटली जब आकाश में उड़ता है प्लेन, वो 350 किलोमीटर्स पर आवर की तरफ स्पीड से ही नहीं उड़ता, वो 900, 1000, 1200 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से उड़ता है. सो दैट इज 4 टाइम्स, it is 4 times what it takes off with. So the takeoff speed is sattva, but ultimately when one transcends sattva, comes to shuddha sattva, that is like 1200 kilometers per hour. Yes, लेकिन अल्टीमेटली इसके लिए उस प्लेन को सैक्रिफाइस करना होगा. क्या सैक्रिफाइस होगा? मैं जब भी उतरूंगा, जब भी चढ़ूंगा, मैं रनवे तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहूंगा. अगर प्लेन कहे ये क्या है, मेरे जीवन को घोटा जा रहा है, मैं चढ़ूंगा भी यहीं पे, उतरूंगा भी यहीं पे, बाकी अरे छोटी छोटी गाड़ियां भी छोटे छोटे गलियों में घूम रही हैं, मैं भी गली में उतरूंगा, नहीं, प्लेन क्रैश हो जाएगा, वो गली में नहीं उतर सकता. उसी प्रकार से हमें भी अगर आध्यात्मिक जगत में जाना है, यहाँ पर थोड़ी तपस्या, थोड़ा सा आत्मसंयम, दैट इज हाउ वी सी कृष्णा टेल्स हियर इन दिस लाइफ ऑल्सो. हम देखते हैं बच्चा अगर पढ़ाई के समय में केवल खेलता ही रहेगा, अच्छे मार्क्स नहीं लाएगा, उसका भविष्य अच्छा नहीं होगा. अगर बच्चा कॉलेज में जाएगा, पढ़ाई अच्छे से नहीं करेगा, उसका भविष्य अच्छा नहीं होगा. अगर वो काम करने के लिए चला भी गया, इवन इफ वन बिकम्स एन IAS एंड IPS ऑफिसर और अ डॉक्टर, वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो उसका भविष्य अच्छा नहीं होगा. यस, हर जगह पे, हर मोड़ पे, हर इकाई पे जीवन के द कंसेप्ट ऑफ सैक्रिफाइस ऑलवेज एग्जिस्ट्स. तो बिना सैक्रिफाइस के इस जीवन में ही नहीं रह सकते, अगले जीवन की तो बात ही और है. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. Krishna Krishna